Alright guys, तो बेसिकली आज मैं आपसे एक बात करूंगा. I will talk about something very interesting. So guys, so there is a guy, his name is Sappu Bhai. I'm gonna call it Sappu Bhai. Okay? Swappu Bhai, Swappu Bhai, Sappu Bhai, एक ही बात है. तो ये जो स्वपू भाई हैं, आप मानेंगे नहीं, he is in America on H1 visa. In November 22, he came to me November 22 for H1 transfer. So I'm going to talk about that. Guys, this will tell you what all issues H1 means. The guy was having a permanent job in a good company, in a good role, in an IT role, as a senior cybersecurity engineer, whatever role, senior engineer, but he was a senior guy, that's what I want to say. And he was working in an American company, which company doesn't matter, but American company. And this guy, he has a kid who is about 5 years of age. The kid was going to school every day. Life was going on as smooth. Wife didn't have a job. An apartment, as you would expect. Obviously, how would they live in anything other than Jhuggi when they're on H1, right? So the guy, basically, everything was going kind of smooth. Lost his job. So in this country, in America, layoffs, hire, fire is like very usual. It's not a big deal. Now let's understand his life, what happens to him, right? He had come to this country in 2012 or something. He did his MS from here. MS, the greatest degree in the world. And in my opinion, the most useless degree in the world he did from this country. Started working in some other company, told me 4 years, some other company, and then some other company, and then this company and this company for 4 years. So he had been living here for almost 12 years, no, 10 years. After spending 10 years in this country, and when he was almost 34 years of age, he lost his job. Life was going smooth. Well, not as smooth as you would want, because he was an H1 at the end of the day, so it can never be that smooth. But then, nevertheless, it was still going on. Now what happens is, this guy lost his job. Okay? You can't believe what happens. You may think, you must have read this rule, oh, you have 60 days to go back to your own country, to your own glorious country, right? So, second thing is, oh, you can always find another job, blah, 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 right? You must have heard of all these rules, so you think there is a glory land. So many people cannot absorb these rules when they're reading these rules in paper. When they're reading the rules on Reddit and Quora and on ChatGPT and on all these things, they cannot really fathom the vicious nature of this whole circle. They do not know what they're getting into. They think, oh, I have all the flexibility. Oh, I have all the flexibility. There is no fucking flexibility. There is no fucking flexibility here. I'll tell you. Well, the flexibility that you see is there, but the way inflexibility hits you is what I'm going to tell you. So anybody who have a kid who's living in Bangalore, can you just in the whiff of a moment can you just go to Delhi? Can you take your kid from Dubai to India all of a sudden? He is 6 years of age, goes to school. How about from America to India then? No, you cannot take it. The kid is in the school. The guy's lease was up for renewal. He didn't renew the lease because he knew that he has no source of income. So he didn't renew the lease because he knew that the next job could be anywhere. He was ready to move to any parts of the United States. Very common strategy of everybody. So he left his lease. Once you leave your lease, then where would you live? In this country. In America. Where will you live now? Where will you live? ये तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं है. ये तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं है. ये हरामजादा देश कैपिटलिस्ट है. तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं है. इनका सबसे पहला, इसका भी और दुबई का भी सबसे पहला है कि बेटा रोकड़ा निकाल, रेंट निकाल, रेंट. अरे ये क्या लगा रखा है आप? मैं बाबा एक महीना और रहने दो. ऐसे सब नहीं चलता है यहाँ. जो फिल्मों में देखते हो. इंडिया तो बढ़िया, बहुत बड़ी जगह है इस मामले में. 2-3 महीने तो निकाल सकते हो माफी मांग के लैंडलॉर्ड से. यहाँ तो कुछ नहीं है. निकलो, गेट आउट ऑफ हियर. तो भाई साहब जी को रोक, तो भाई साहब जी ने अपना वो घर छोड़ दिया.
सिएटल में कोई दोस्त, उसके पास कोई घर घूर था, वहां चला गया, 3 महीने वहां रहा, जॉब तो मिली नहीं। हाँ, तो 60 डेज का टाइम था। अभी आपको बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तुम कोई सड़क के जो साथ में जो गंदा नाला है उसके कीड़े नहीं हो तुम। ये गंदे कीड़ों वाली जो लाइफ होती है ना, कि अमेरिका से भाग के आपको इंडिया जाना पड़ गया, जिसका आपको अंदाजा नहीं है, तो ये सारी आपकी माइंडसेट मैं चेंज कर रहा हूं। थोड़ा सा हिंदी में रखते हैं, जरा तड़का लगता है, मजा नहीं आता नहीं तो। और वैसे भी हिंदुस्तानी लोगों के लिए, राइट, गोरों को तो इसे काम ही नहीं, चैनल तो गोरों का था ना पहले ये, तो गोरों के लिए तो कोई काम ही नहीं है। हिंदी में रखते हैं, मजा आएगा, जरा बात भी करने का मजा आएगा। तो ये जो गंदी नाली के, सड़क के साथ जो गंदी नाली, सड़क के पास से गुजरा हूं, अंदर से निकल रही है बात की, सड़क देख देख के साथ गंदी नाली भी है एक। सड़क के साथ जो गंदी नाली है उसके अंदर जो रेंगने वाले ये गंदे गंदे छोटे छोटे गंदे गंदे कीड़े जिन्हें कोई भी मसल सकता है, ये आपकी लाइफ नहीं है। ये जो आप अपने माइंड में रन करना बंद कर दो कि मैं तो ये कर लूंगा, अपने वतन वापस चले जाऊंगा, वो मेरा वतन है। वतन वाला गाने याद आ गए, मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान है, तेरे पास आ गया तो बर्बाद ही बर्बाद है। तो जैसा भी है, अपना प्यारा वतन तेरा भी है, मैं भी प्यार करता हूँ। इंडिया जाना हमेशा अच्छा लगता है। इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो इंडिया की जीत होगी, इंडिया यूएसए का मैच हो तो इंडिया की जीत मनाएंगे भाई आज भी। वैसे होने नहीं वाला, इंडिया तो कहाँ से कोई स्पोर्ट्समैन बनाएगा, इंडिया किस चीज़ में कम्पीट करेगा यूएसए के साथ, तो इसलिए थोड़ा वो सिचुएशन है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लोगों के सामने जो सिचुएशन आती है, वो सोचते हैं बेचारा कौन जीतेगा कौन हारा, वो इंडिया की फूट करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन बुरा मानते हैं बेचारे, करे भी क्या, उनके बच्चे आई डोंट नो, मॉरल डिलेमा। तो भाई साहब जी, इस मॉरल डिलेमा में सारी दुनिया फंसी रहती है। अपने देश कहना बड़ा आसान है, जाना बहुत औखा है भाई। ये गंदे कीड़ों वाली लाइफ जो है ना, ये आपको समझनी इस बात की, सारा कुछ बेच बाच के जो अपने घर, गाड़ी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल जो सब अपने अपने पैसों से खरीदा होता है ना, ये सबको फेंकना बड़ा मुश्किल होता है। इनकी जो वैल्यू मिलती है ना, 5% भी नहीं मिलती, इनकी वैल्यू -20% 10% मिलती है। आपको इनको फेंक के जाना पड़ता है प्रॉपरली कूड़े में। मैंने किया हुआ है ना अपने हाथों से, मुझे पता है। मुझे तो इंडिया में नहीं वापस जाना था, मुझे तो एलए से मूव करके कहीं और जाना था। अपनी जो नवी साइकिल, मैं उसको ऐसे कूड़ेदान में रख के आया था अपने हाथों से। यस, $70 की थी, टेंशन ना लो, आई ट्रामेटाइज कर देता हूँ मैं। ये सब हुआ है ना यार बच्चों आपके साथ। लाइफ ऐसी सी है, बस खुश हो सकते हो, हंस सकते हो, जो हुआ था बस उसके ऊपर क्या कर सकते हो, लाइट फील कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कुछ कर सकते। जो हुआ था उसका एक्चुअल ने जिस तरह से मेरी ली है ना, उसकी किसी की भी ली, इसकी तो फिर भी नहीं ली। मेरे तो बहुत बुरा हाल होता था, इंडिया तो नहीं जाना पड़ता था। इस तरह के बेवकूफ़ लोगों के साथ जितना तो बिल्कुल ही, इस तरह की बेवकूफ़ी मैं नहीं करता था। तो भाई साहब जी इस कंट्री में आ गए हैं और उनकी लग गई है, आपको पता है क्या, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं डालते रहता हूँ जीरा भी, ये पिसा हुआ जीरा भी थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। चलिए जी, तो भाई साहब जी इंडिया नहीं जा सकते, इसको समझो कि भाई साहब जी इंडिया नहीं जा सकते। ये बात को जिसको समझ में आ रही है ना, वही समझ पाएगा। ये गंदे नाली के गंदे कीड़ों वाली लाइफ है। आप फोर्स्ड हो, कोई अपना दिल करे मन करे तो है, हजारों में एक बंदा जाता है इंडिया। बहुत बड़े प्रोफेशनल मेरे सामने गए हैं, लेकिन जो ये मजबूरी में जाना पड़ता है ना, कि साला निकाल दिया और सब कुछ बेचो, जाओ यहाँ से, निकलो, खिसको यहाँ से, ये बड़ी गंदी चीज होती है, इसको तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो भाई साहब जी भी वैसी हैं। अपन में वीज़ा का क्या करें, तो वीज़ा के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल बताते हैं कि जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलेगी वो वीज़ा फाइल नहीं करेंगे। 60 दिन के अंदर उनको वीज़ा फाइल करना है, नहीं तो वीज़ा आपका खारिज हो जाएगा और फिर आप इलीगल हो जाओगे। फिर आपको इस कंट्री से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर वापस आने के लिए उस नई कंपनी की स्टैंपिंग के साथ आना पड़ेगा। समझिए मैंने क्या बोला है। स्टैंपिंग का रूल आपने पढ़ा होगा सारा, राइट? सुन लिया आपने रूल आज मेरे मुंह से, सुन लिया? आपको पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ? आपको पता चल गया मैं क्या कह रहा हूँ? यही तो चीज़ आपको पता नहीं चल रही है। आपको लग रहा है रूल तो बड़ा अच्छे बने हुए हैं, रूल अच्छे बने हुए हैं, छुप के अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का दिमाग तो काम करता नहीं। अब चाहे आईटी से हो, चाहे पीसी से हो, चाहे आरईसी से हो, आपका दिमाग थोड़ी काम करता है। Because when you analyze the rules, even ChatGPT doesn't tell you how it comes and hits you. How it comes and hits you. जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो जो रूल्स है ना, ये सारा जो मेज ऑफ रूल्स, when it will hit you really bad. This is how it hits you. तो क्या करते हो कि आपको जॉब तो मिल नहीं रही है, जॉब मिल भी गई तो बड़े लफड़े हैं, तो एक दिन आपका काउंट करना है। 60 दिन बाद मिली तो गड़बड़ है, 60 दिन से पहले इस कंट्री से निकलना पड़ेगा। सारा हो गया क्लियर? अब क्या है कि बंदा को जॉब तो मिल नहीं रही, तो बंदे ने क्या किया, B1 B2 पे वो स्विच कर लिया। इंटेलिजेंट